برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ترجیح، وزیر اعظم کی برآمدات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی سے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت۔ چاول کی برآمدات میں اضافے کے لیے رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ برآمدات میں اضافے اور برآمد کنندگان کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات پر کام تیز کیا جائے۔ برآمد کنندگان کو ٹیکس ری فنڈ میں کوتاہی قبول نہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نئے سال میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ، انڈیکس 1,87,000 کی تاریخی سطح عبور کر گیا۔ کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1,456 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,86,518 پر بند۔ 86 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 3 دن میں 100 انڈیکس 7,000 پوائنٹ سے زیادہ بڑھ گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نئے کاروبار کے لیے قرض کی فراہمی پر جائزہ اجلاس۔ اسٹیٹ بینک چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی کے طریقہ کار کو مزید آسان بنائے۔ زرعی شعبے میں جدت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قرض کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایس ایم ایز معیشت اور صنعتوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت سابق وزراء خارجہ اور سابق سفیروں کا مشاورتی اجلاس، حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کا جائزہ۔ اجلاس میں پاکستان کے مختلف ملکوں کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات بڑھانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں اب جو پرو ایکٹیو گورننس ہے، پنجاب کے اندر جب بیماری آپ کو ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کے بعد بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو یہ جو میری فورس، یہ جو میری پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، جس کو میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف وہ یہ کہ وہ میری کان ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، بلکہ میرے اس خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا۔ عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز صوبے کے عوام کی بہترین خدمت کریں گی۔ جو خواب 2 سال پہلے دیکھا، آج وہ پورا ہو رہا ہے۔ کلینکس آن ویلز کے ذریعے لوگوں کو علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی داماد گروپ کے وفد سے ملاقات، ڈیجیٹل فائنانس اور ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون پر تبادلہ خیال، ٹوکنائزیشن، بلاک چین اور مصنوعی ذہانت پر شراکت داری میں دلچسپی، پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی تیز کرنے پر اتفاق، شفافیت، مالی شمولیت اور سرمایہ کاروں کی رسائی بڑھانے پر زور، پاکستان کا ذمہ دارانہ اختراع اور ضابطہ جاتی عمل پر عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب وانگ جوہانگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال، پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر داخلہ کا پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کے حفاظت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چینی وزیر داخلہ۔ امن اور سیاسی استحکام ترقی کی بنیاد، حکومت نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ملکی وسائل کا 50% قرضوں کی نظر ہو رہا ہے، مؤثر گورننس اور وسائل کا درست استعمال ناگزیر ہے، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر دنیا کا مقابلہ ممکن نہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال کی 53ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کابینہ کے ارکان سید ناصر حسین شاہ اور سید غنی کی ملاقات، محکموں کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ رکن سندھ اسمبلی ممتاز چانڈیو کی بلاول بھٹو سے ملاقات میں نشیر و فیروز کے عوامی مسائل اور ان کے حل پر بریفنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے رکن سندھ اسمبلی سجیدہ لغاری کی بھی ملاقات، سیاست میں خواتین کے کردار پر بات چیت۔
पाकिस्तान सुपर लीग ने सफर के लिए तैयार 11वें एडिशन में 2 नई टीमों की शमूलियत। नई टीमों की नीलामी कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। 10 कंपनियों के दरमियान मुकाबला। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट नई फ्रेंचाइजीज के मुमकिना शहर। PSL सीजन 11 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। भारत को एक और सुबकी का सामना। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम देने का भारतीय मीडिया का दावा झूठा निकला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद कर दी। इस तरह की खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी और बेबुनियाद हैं। अपनी टीम की हिफाजत और सलामती को सबसे ज्यादा तरजीह देने के लिए पुरअज़्म है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे में आजाद कश्मीर हुकूमत के दायरे अमल में आने वाले तमाम मुतालबात पूरे कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान के दायरे कार में आने वाले चंद मामलात पर तेजी से काम जारी है। AJ बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के लिए मतलूबा 2 अरब 90 करोड़ रुपए फ्राहम कर दिए गए हैं। एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के वरसा और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी रफीक नैयर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। काबिज भारतीय फोर्सेज की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। 22 मकामात पर छापे। मकबूजा इलाके में खौफ और दहशत की फिजा। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। घरों पर छापे। गिरफ्तारियां मामूल बन चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में RSS के इंतहा पसंद बेलगाम अकलियतों की जिंदगी अजीरन। राजस्थान और बिहार के खून रेज वाकयात से भारत का भयानक चेहरा बेनकाब। बिहार में मुसलमान मजदूर को RSS के शरपसंदों ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। एक और वाकये में RSS गुंडों ने बांग्लादेशी मुसलमान शहरी को गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में सड़क पर घसीटा। भारत में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन अफगान तालिबान रजीम ने कानून और इंसानी उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। सुबह गजनी में किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा। गांव रोजा में मकामी खानदानों की मलकियत अराजी गासिब तालिबान ने तहवील में ले ली। ये जमीनें सदियों से मकामी खानदानों की मलकियत रही हैं। सरकारी दस्तावेजात जमा करवाने के बावजूद तालिबान हुक्काम ने कोई कानूनी जायजा नहीं लिया। मुतासरीन की दुहाइयां। मगरबी किनारे में फलस्तीनी यूनिवर्सिटी में इजरायली फौजियों की फायरिंग। 5 फलस्तीनी तलबा जख्मी। तलबा के जवाबी पथराव से सहयूनी फौजी फरार। जनूबी लेबनान में इजरायली फोर्सेस का हमला। 2 अफराद जाँ बहक। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और फ्रांस के नुमाइंदों की शिरकत। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन समेत तमाम इम्कानात पर गौर। कौमी सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस। वेनेज़ुएला की अबूरी हुकूमत अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल मार्केट की कीमत पर फराहम करेगी। आमदनी बतौर सदर मेरे कंट्रोल में होगी। रकम वेनेज़ुएला और अमेरिका के अवाम पर खर्च करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। Hint of movement. Upish, mid-off takes it. Oh, takes it on. Square leg, underneath it. Oh! That's close, that is close. दम्बोला में पहला T20 क्रिकेट मैच। श्रीलंका का पाकिस्तान को 129 रन का हदफ। 19.2 ओवर्स में 128 रन पर आउट। जोनिती लियोंगे 40 रन के साथ नुमाया रहे। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। मोहम्मद वसीम और शादाब खान के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Short one. Just too short. It's picked up. Gone. Full and straight. The finger goes up. Beautiful. Shot. Classic cover drive. और सिडनी में 5वां एशेज टेस्ट। इंग्लैंड की 119 रन की बढ़तरी। 2 विकेट्स बाकी। चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट्स पर 302 रन बना लिए।
जैकब बैथल के टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी, 142 रन पर नॉट आउट। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड के 384 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ की 138 रन की इनिंग्स। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। You cannot stop him. Oh, that looks good. That looks really good. Jacob Bethels helps that around the corner. Over pitches. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरामदात में इजाफे और तजारती खसारे में कमी के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड के हवाले से कोई कोताही कबूल नहीं। एक्सपोर्टर्स को सहूलतों की फराहमी, दाराजाती इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर हिकमत अमली तरतीब दी जाए। इजलास में बरामदात में इजाफे के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को इंजीनियरिंग, अद्वियात, मेडिकल डिवाइसेस और प्रोसेस फूड समेत हाई वैल्यू सेक्टर्स में बरामदात से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की और किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए सरमाए की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। स्टेट बैंक इस सिलसिले में कमर्शियल बैंकों की जानिब से कर्ज की फराहमी का तरीकाकार मजीद सहल बनाने के लिए इकदाम करे। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ज़राई शोबे में जदत के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि छोटे और दरमियाने कारोबार की सहूलत के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी साजी की जाए और इस हवाले से मुआविन खुसूसी हारून अख्तर स्मेडा की टीम के हमरा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सूबों का दौरा करें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में छोटे और दरमियाने कारोबार मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नए कारोबार शुरू करने और माशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत दी जाए। उन्होंने कहा कि कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए निजी शोबे, बिलखुसूस एसएमई सेक्टर और ज़राई शोबे को कर्ज की फराहमी के तरीक़ाकार को मजीद सहल बनाने के लिए ज़ैली कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। इजलास में गुज़श्ता बरसों में कारोबार, मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज के आदादोशुमार और माशी बेहतरी के बारे में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई। कुछ बात करेंगे यहाँ पर PSX की ऊंची उड़ान की। सरमायाकारों का एतमाद हुआ बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 1456 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख में पहली मरतबा 1,86,518 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। हुकूमत की काविशों की वजह से मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है। बेहतर इक्तिसादी पॉलिसीज की वजह से तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ये तमाम इकदामात सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल के सिर्फ 6 माह के अंदर 21,600 से जायद नई कंपनियां रजिस्टर की गई हैं, जो मुल्क में सरमायाकारों की दिलचस्पी को जाहिर करता है। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,950 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,87,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,87,015 पर भी पहुंची। माहिरीन के मुताबिक महंगाई की शरह में नुमाया कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर का मुस्तहकम होना मार्केट में तेजी की वजूहात हैं। अब तक 5 रोज के अंदर मार्केट में 12,460 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो एक नया जो है वो रिजल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है दिसंबर के बाद, ये जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक अच्छी समझ लें कि अनाउंसमेंट्स हमें आने वाले दिनों में मिलेगी। इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न ये मार्केट दे के जाएगी और अभी आने वाले दिनों में और भी हम न्यू हाइस बनते हुए देखेंगे। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 299 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 161 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 103 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज मार्केट में 86 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत के 6,06,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 32 करोड़ से जायद के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल,
और फर्टिलाइजर्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से दमाक ग्रुप की शरीक मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेपिको की CEO आमिरा हुसैन सजवानी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने, पायदार तरक्की के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की इक्तिसादी सलाहियत से फ़ायदा उठाने के हवाले से बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबार के लिए साजगार माहौल के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। जिद्दत और तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार की हौसला अफजाई की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में ख़वातीन के बारे में नवी OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजलास हुआ। मोहम्मद इसहाक डार ने इंतजामात और तैयारियों को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुतल्लिका वजारतों और OIC सेक्रेटेरिएट के दरमियान करीबी रवाबित यकीनी बनाने की हिदायत की। कॉन्फ्रेंस ख़वातीन के हुकूक, समाजी, माशी और सियासी किरदार मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी अज़्म की अक्कास है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने साबिक वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के साबिक सफ़ीरों के मुशावरती इजलास की सदारत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा लिया गया और पाकिस्तान के दो तरफा और कसीरुल-जहती ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला की लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब की तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब हॉकी स्टेडियम लाहौर में पंजाब का पहला 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का प्रोग्राम लॉन्च करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की बाहिम्मत खवातीन ने मैदानी अमल में अपना मुनफरिद मुकाम पैदा किया है और वो सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आला ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहां पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। वज़ीर आला ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में क्लिनिक्स ऑन व्हील के जरिए लोगों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है और रजिस्टर्ड मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। जो मेरी गवर्नेंस है उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। 1000 के करीब जो आपके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो लोगों के मोहल्लों में जाके, उनकी गलियों में, उनके डोर स्टेप पे जाके आपका इलाज कर रहे हैं। और आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिनको आप मोबाइल हॉस्पिटल्स कहते हो, वो लोगों के गांव में जाकर इलाज कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़ियादत में सूबा अमन, तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय कर रहा है और उनके नाक़दीन भी वज़ीर आला के हेल्थ विजन के मोतरिफ हैं। इससे पहले जब वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब स्टेडियम पहुंची तो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने हॉकी स्टेडियम के ट्रैक पर तवील चक्कर लगाकर हर जिले से आने वाली कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का खैर मकदम किया। इस मौके पर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के दस्ते ने मार्च पास्ट किया और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ को सलामी पेश की। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दमाक ग्रुप के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की और सूबे में सरमायाकारी, हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने और मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को डिजिटल असासाजात और नई टेक्नोलॉजी में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेट वे बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर के साथ बड़ी IT और डिजिटल इकॉनमी है। सूबे में हर साल 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट की काबिल कदर अफरादी क़ुव्वत सामने आ रही है। दमाक ग्रुप ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के वज़ीर दाखिला वांग याओहोंग से बीजिंग में मुलाकात की। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत
दहशत गर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इत्तेफाक किया गया, जबकि वज़राए दाखिला की सतह पर हर साल एक बार मुलाकात होगी। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरी और मनसूबों की हिफाजत के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक किया और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में इस्लामाबाद और बीजिंग सिस्टर सिटीज़ की उमूर पर भी बातचीत की गई। दोनों वज़रा के दरमियान पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तरबियत के ज़रिए दोनों ममालिक की पुलिस और इदारों के दरमियान तजुर्बात और मालूमात के तबादले को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अपना मालियाती निज़ाम मजबूत बनाने के लिए मोतबर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फ़ाल तौर पर राब्ते में है। इस्लामाबाद में सजवानी बिजनेस ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन ताउन की बुनियाद कौमी तरजीहात, शफाफियत और काबिल इतलाक़ कवानीन और पॉलिसीज़ पर रखी जाएगी। मुलाकात में टोकनाइजेशन, मसनूई ज़हानत, ब्लॉकचेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक आलमी रुझानात, पाकिस्तान की मालियाती इस्लाहात और डिजिटल तब्दीली के एजेंडे पर तबादला ख्याल हुआ। वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकतदारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने सिंध असम्बली मुमताज़ चांडियो ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की और नौशहर फरोज के अवामी मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन सिंध असम्बली सजीदा लगारी ने मुलाकात की और ख़वातीन की सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध काबीना के अरकान सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी के जरिए तरक्की की रफ्तार तेज कर सकते हैं। वो कराची में कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। तकरीब से खिताब करते हुए बहरी उमूर के वफाकी वजीर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि तिजारत का शोबा मुल्क की मईशत में कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि सनतकार अपने मंसूबे लाएं, हुकूमत उनके साथ मुकम्मल ताउन और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पोर्ट्स की साइड से आप एक्सपोर्टर्स को, आप इम्पोर्टर्स को, आपको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो हम ज़रूर आपको देंगे। हमारा हर इदारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर बंदा अपने तौर पे कोई इदारा है, बेशक वो हमारे दफाई इदारे हैं, बेशक अदलिया है, बेशक सियासतदान हैं और हुक्मरान हैं, वो इस सिलसिले में संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि हमें तनकीद के बजाय तामीरी सोच अपनाकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर काटी के सदर मोहम्मद इकराम राजपूत, चेयरमैन शाहिद अहमद और दूसरे अरकान ने काटी की कारकर्दगी और दरपेश मसाइल से वफाकी वजीर को आगाह किया। जुनैद अनवार चौधरी ने मसाइल सुने और उनके हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात चौधरी रफ़ीक नैयर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दायरे अमल में आने वाले तमाम मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान के दायरे कार में आने वाले चंद मामलात पर तेज़ी से काम हो रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि AJ बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने के लिए हुकूमत ने मतलूबा 2.9 बिलियन रुपए बैंक को फराहम कर दिए हैं। दूर दराज इलाकों में BHUs को फ़ाल और LOC पर फर्स्ट एड पोस्टों के क़याम की भी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि CMH रावलाकोट में कार्डिक सर्विसेज शुरू करने पर काम हो रहा है। चौधरी रफ़ीक नैयर ने कहा कि एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के वरसा और ज़ख्मियों को मुआवजे की अदायगी हो चुकी है। बिजली के निज़ाम की अपग्रेडेशन और ज़राई अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों की फराहमी के लिए प्लानिंग कमीशन को सिफारिश कर दी गई है। मुज़फ़्फ़राबाद में हरियाला और पटियाली हाइडल प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने तालीमी इदारों में 300 एडहॉक लेक्चरर्स को भी तैनात कर दिया है।
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حل طلب مسائل افہام و تفہیم سے ہی طے پا سکتے ہیں۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کسی انتشار اور افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مہاجرین جموں کشمیر ہمارا حصہ ہیں، ان کی اسمبلی نشستیں ختم نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ ہم 10 جنوری سے امیدواروں کی درخواستیں طلب کی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ نے پیراملٹری فورسز کے ساتھ مل کر وادی کشمیر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے ہوئے 22 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ KMS کے مطابق یہ چھاپے سری نگر میں 15 مقامات سمیت مختلف اضلاع میں بیک وقت مارے گئے۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائیاں نام نہاد بھارت مخالف سرگرمیوں اور مشکوک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں کی گئیں۔ ان کارروائیوں نے مقبوضہ علاقے میں خوف اور دہشت کی فضا کو مزید بڑھا دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال پر عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کی مسلسل خاموشی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپے، گرفتاریوں اور شہریوں کو ہراساں کرنا روز کا معمول بن چکا ہے۔ تاہم وحشیانہ مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مزید تاخیر کیے بغیر کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ BJP حکومت نے 2019 میں لداخ کو جموں کشمیر سے الگ کر کے تباہ کر دیا، اب وہ جموں کو کشمیر سے الگ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کو علیحدہ ریاست کا درجہ دینے کے اچانک مطالبے سے مذہبی اور سیاسی انجینئرنگ کے سنگین خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ بھارت میں RSS کے انتہا پسند بے لگام کارکنوں نے اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ راجستھان اور بہار کے خونریز واقعات نے بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ دا ہندوستان گزٹ نے انتہا پسند مودی کے نام نہاد سیکولر بھارت کی کلئی کھولتے ہوئے کہا ہے کہ بہار میں مسلمان مزدور نرشید عالم کو RSS کے شرپسندوں نے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے زبردستی لگوائے گئے۔ سماجی کارکن ضیاء الحق نے دا ہندوستان گزٹ کو بتایا کہ نرشید عالم کی حالت نازک ہے، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ برطانوی میڈیا PLS5 کے مطابق بھارتی ریاست راجستھان میں ایک بزرگ مسلمان کو بھی ہندوتوا نظریے کے شدت پسندوں نے جھوٹے الزامات لگا کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ بھارتی صحافی وقار حسن کے مطابق RSS کے غنڈوں نے مسلمان شہری کو گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں بنگلہ دیشی قرار دے کر سڑک پر گھسیٹا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ کسی ذاتی جھگڑے یا حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ مودی کی سیاسی پشت پناہی میں شرپسندوں کے ذریعے قتل و تشدد کی منظم سازش ہے۔ اور بین الاقوامی منظرنامے سے اہم خبر آپ کو دیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل اعلیٰ معیار کا تیل امریکہ منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ تیل امریکہ میں مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس کی آمدنی کو وہ خود کنٹرول کریں گے اور اسے امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے وزیر توانائی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس منصوبے پر کام شروع کریں اور تیل کو امریکی بندرگاہوں پر پہنچایا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف آپشنز میں ڈنمارک سے یہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر امریکی عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو لیڈرز کے اعتراضات کے باوجود ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ادھر مغربی کنارے کی فلسطینی یونیورسٹی میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے 5 فلسطینی طلباء زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیرزیت یونیورسٹی کے کیمپس میں گھس کر فائرنگ کی۔ یونیورسٹی کے صدر نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ طلباء کے جوابی پتھراؤ سے صہیونی فوجی فرار ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کے ایک گھر پر حملے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق حزب اللہ سے بتایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں تقریباً 300 لبنانی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج بھی ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں اقوام متحدہ، امریکہ اور فرانس کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ راجن بلوچستان بھر میں موسم ان دنوں شدید سرد ہے، بعض علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کم ہے۔ تفصیل دیکھیے کوئٹہ سے وقار احمد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔
बलूचिस्तान में इन दिनों मौसम अब शदीद सर्द है। शुमाली इजला में बेशतर इलाकों में रात गए और सवेरे टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम रहने लगा है। 24 घंटे के दौरान -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ज़ियारत सबसे सर्द रहा। कलात में दर्जे हरारत -8, कोयटा -4, मुस्लिम बाग -2.5, पशिन और दालबंदीन -1, चमन और लोरलाई 0, जबकि पंजगूर और योब में पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद डिवीजन के मैदानी इलाकों में भी सवेरे धुंध छाई रहती है। मेट ऑफिस का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान भी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द मगर खुश्क रहेगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, योब, किला अब्दुल्ला और कलात में रात गई टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से कम रहने की ही तवक्के है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। खित्ता पठवार और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब, ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही, जबकि खित्ता पठवार और कश्मीर में चंद मकामात पर कोहरा पड़ा। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -13, अस्तोर, ज़ियारत -9, कलात -8, कलाम स्कर्दू -7, हुंजा -6, नथिया गली गोपस -5, कोयटा और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 1, लाहौर 6, कराची 14, पेशावर 1, कोयटा में -4, मुल्तान 7, गिलगित 2, स्कर्दू -7, मुजफ्फराबाद 4, जबकि श्रीनगर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और बुलेटिन में यहाँ आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे से जाम मुशावरत की है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाक अमेरिकन बिजनेसमैन इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया से मुसाबिकत कर रहा है, जबकि आलमी तनाजुर में ग्लोबल ट्रेड में फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से बरामदात में इजाफे के लिए चैलेंजेस का सामना है। तहम पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2.5 सालों में काबिल इत्मीनान हद तक मईशत को संभाला है। पाकिस्तान में LC खोलना भी कंपनीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा हो, डॉलर टर्म्स में रिपैट्रिएशन, जो बाहर की कंपनियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं उनके लिए रिपैट्रिएट करना या भेजना भी नामुमकिन हो, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को बैंक से पैसे लेके काम करना बहुत मुश्किल लग रहा हो, पाकिस्तान की रिज़र्व्स जो हैं वो अपने रिकॉर्ड लोएस्ट की तरफ हों। इस सारे सिनारियों को अगर आप 2.5-3 साल पहले रखें और आज रखें तो हमने बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट न सिर्फ दिखाई है, उनको बहुत बेहतर भी किया है। इस मौके पर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के सदर अकरम वली मोहम्मद ने वफाकी वजीर की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से हमावक्त ताजिरों से राब्ते में रहना खुश आइंद है और इससे तजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई। शरकाने तालीम के फ़रोग़ और तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने का अज़्म किया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको चौधरी मजहर की। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की, फिक्री इस्तेहकाम और कौमी यकजहती का दारोमदार उसके तालीमी निज़ाम पर होता है। उन्होंने कहा, कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़राए तालीम और हुकूमती नुमाइंदों की शिरकत का मकसद तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना, मेयार तालीम बढ़ाना और जदीद तालीम के असूलों को अपनाना है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम तालीम के बारे में अपने किसी टारगेट और किसी बयानिए को मुकम्मल कर लें। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम, निसाब साज इदारों
और जायका के नुमाइंदों ने शिरकत की और निज़ाम तालीम की बेहतरी और फ़रोग के लिए सिफारिशात पेश की। शुरका ने कहा, तालीम मुल्क व कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद होती है, हमें इसको असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। उन्होंने कहा, वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तालीमी पॉलिसी, इस्लाहात और कौमी तालीमी अहदाफ के हसूल का अहम फोरम है जो आने वाली नस्लों के लिए मजबूत और हम असर तालीमी निज़ाम की बुनियाद बनेगी। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हाउसिंग के वफाकी वजीर मियां रियास हुसैन पीरजादा ने कहा है कि कुदरती आफात के दौरान बड़े पैमाने पर नुकसानात की एक अहम वजह गैर मयारी और बगैर मनसूबाबंदी के की गई तामीरात हैं। इस्लामाबाद में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट प्रोग्राम के तहत सेमिनार से खिताब में उन्होंने जोर दिया कि आफात के बाद इकदामात की बजाय पेशगी तहफ़्फ़ुज़, खतरात की बरवक्त तशख़ीस और इनके तदारुक के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी और मजबूत हिकमत अमली का फ़रोग़ है। उन्होंने कहा कि NDMA अवाम के कीमती जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अपनी अव्वलीन तरजीह समझता है। कराची के होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च में वफाकी वजारत मजहबी उमूर के तहत मजहबी रवादारी और बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के लिए हिकमत अमली के उन्वान से कॉन्फ्रेंस हुई। इसी कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर ममलूकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि इस्लाम समेत कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों और अक़लियतों का कातिल है। पाकिस्तानी तारीख में किसी वजीर आज़म ने नफरत की बात नहीं की। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, जंगें तबाही लाती हैं। जब कोई हमला करेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। आज वजीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब मसीहियों को वजीर आज़म हाउस में मदऊ करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा जाती है चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब रावलपिंडी चर्च में जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। पहली दफ़ा हिंदू बरादरी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में मदऊ किया गया, दिवाली सेलिब्रेट की गई। इसी तरह CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने, डॉक्टर श्याम सुंदर ने CM हाउस में हमारे मसीहों को क्रिसमस सेलिब्रेट की। उन्होंने कहा कि हमें अपनी अफवाज और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पर फख्र है। कॉन्फ्रेंस से उलमाए कराम, स्कॉलर्स, हिंदू, मसीही, सिख, पारसी और दूसरे मज़ाहिब के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि भारत में क्रिसमस पर मसीहियों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रियासत कायदे आज़म के उसूलों पर उस्तवार है और यहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी लाहौर में साबिक वज़ीर आला मंसूर भट्टू मरहूम की रिहाइश गाह गए। उन्होंने मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी की। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कायम मकाम चेयरमैन सैयद नवीद कमर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वजारत दिफा के माली साल 2023-24 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि PIA कस्टम्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज की मद में PIA 131 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रहा। PSC के रुकन डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने बताया कि PIA के जिम्मे कर्जे और PIA की बैरूने और अंदरूने मुल्क बड़ी अमलाक भी सरकारी होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इन अमलाक और असासों को बेचकर PIA के जिम्मे वाजिबात अदा किए जा सकते हैं। इजलास को बताया गया कि टैक्सेस की मद में वसूल न की गई रकम में 115 अरब रुपए हुकूमत की कायम करदा होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए गए हैं। सरबराह सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि 5 अरब रुपए वसूल कर लिए गए हैं, बाकी 9 अरब रुपए वसूली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजारत दिफा को 6 माह का वक्त देते हुए हिदायत की है कि बाकी 9 अरब रुपए वसूल करके ऑडिट हुकाम से तस्दीक करवाई जाए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो वीमेन यूनिवर्सिटी का नवा कॉन्वोकेशन पेशावर में हुआ। कॉन्वोकेशन में 434 तलबात को BS, MPhil और PhD की डिग्रियां दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने तकरीब से खिताब में कहा कि सूबे के नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके तहत बासलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इंसाफ और इंसानी हमदर्दी की एक नुमाया मिसाल कायम करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने रिक्शा ड्राइवर अब्दुल नबी मेंगल को नए रिक्शे की खरीदारी के लिए माली मुआवनत फराहम की है। ये मुलाकात कोयटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद अमल में आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलव्विस ट्रैफिक पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल करने और वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सहाफत में जिद्दत आती जा रही है और अब सहाफत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक महदूद नहीं रही। कराची प्रेस क्लब के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के साथ हमेशा ताउन करती आई है और करती रहेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 मैच दम्बुला में पाकिस्तान ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की है। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले मैच में 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाकर आउट हो गई थी। 129 रन का हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 17वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से फरहान अली आगा ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और एक और निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। इससे कबल पाकिस्तान की बॉलिंग में भी शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। पाकिस्तान की टीम 3 T20 मैचेस सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका में मौजूद है। पहला T20 मैच दम्बुला में खेला गया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग करने का फैसला किया था और इस फैसले को पाकिस्तान के पेसर्स ने दुरुस्त साबित किया। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद के हिस्से में 3-3 विकेट, जबकि शादाब खान और मोहम्मद वसीम जूनियर ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के जारहाना आगाज की बदौलत साहिबजादा फरहान ने 51 रन स्कोर किए। साइम अयूब 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान सलमान अली आगा 16 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18 रन, जबकि उस्मान खान 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने इस पहले मैच में 6 विकेट से कामयाबी हासिल की है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान क़य्यूम। जी ज़ीशान, पहला T20 मैच और पाकिस्तान की शानदार जीत में अहम किरदार किन प्लेयर्स का रहा? देखें, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो हतमी तैयारियां हैं उनका आगाज हो गया है और क्योंकि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलने हैं तो ये सीरीज बड़ी अहम थी कि पाकिस्तान जो है इसका आगाज बड़े जबरदस्त करे और वही हुआ। हमारे बॉलर्स ने जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान को एक शानदार फतह दिलाई है। जबरदस्त कामयाबी पाकिस्तान की। 6 विकेटों से पाकिस्तान ने जो दम्बोला में पहला T20 मैच है वो अपने नाम कर लिया है। कंडीशंस ऐसी थी कि पाकिस्तान को टॉस का भी फायदा हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी और हमारे बॉलर्स जो थे उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई। सलमान मिर्जा थे, उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा अबरार अहमद ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान की आज कमबैक मैच था और उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा मोहम्मद वसीम की जबरदस्त बॉलिंग थी, उन्होंने 2.2 ओवर्स में 7 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया और श्रीलंका की टीम जो है वो 19.2 ओवर्स में 128 रन बनाकर आउट हुई और पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ जो है वो 16.4 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। साहिबजादा फरहान ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की है। उन्होंने 36 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा साइम अयूब ने 24 रन बनाए हैं। सलमान अली आगा जो है वो 16 रन बना सके हैं, जबकि उस्मान खान 7 और शादाब खान 18 रन पर नॉट आउट रहे और पहले T20 मैच पाकिस्तान ने 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। दूसरा मैच जो है वो जुम्मे को दम्बोला में ही खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा मैच भी जो है वो इतवार को दम्बोला में ही शेड्यूल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम। आप इस पहले मैच में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के हवाले से आगाह कर रहे थे तफसीलात के साथ, और अब खेल की कुछ मज़ीद खबरें होंगी, उसके लिए हम आपको लिए चलेंगे समय इकबाल की जानिब। नाजरीन, खेल में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं समी इकबाल और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग नए सफर के लिए तैयार। PSL के 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी। 2 नई टीमों की नीलामी का अमल कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। तकनीकी मेयार पर पूरा उतरने वाली 10 कंपनियां नीलामी के मरहले में शामिल होंगी। PCB को दुनिया भर से 12 बोलियां मौसूल हुई थीं। बोर्ड की बिड कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद 10 को अहल करार दे दिया था। कामयाब कंपनियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम मुंतखब कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में 8 टीमें शिरकत करेंगी। मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके पैदा होंगे। PCB का कहना है कि PSL सिर्फ T20 नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान है। लंदन और न्यूयॉर्क में कामयाब रोड शो से आलमी सरमायाकार मुतवज्जे हुए। PSL नई दहाई में भी आला मेयार की क्रिकेट फराहम करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करने का भारतीय मीडिया का दावा झूठा निकला।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की है कि आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि आईसीसी की जानिब से जवाब मौसूल हुआ है, जिसमें क्रिकेट की आलमी तंजीम ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश टीम की मुकम्मल और बिला तातुल शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़म का इआदा करते हुए खदशात दूर करने के लिए मिलकर काम करने की रजामंदी जाहिर की है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यकीन दिलाया है कि इवेंट के लिए तफसीली हिफाजती मनसूबाबंदी पर भी गौर किया जाएगा। भारतीय मीडिया की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिए जाने के दावे पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया है कि इस तरह के दावे मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। ऐसी झूठी खबरें आईसीसी से मौसूल होने वाली बातचीत की नौयत या मवाद की अक्कास नहीं है। बीसीबी का कहना है कि वो अपनी क्रिकेट टीम की हिफाजत और सलामती को सबसे ज्यादा तरजीह देने के लिए पुरअज़्म है। मुज़म्मिल मुर्तज़ा ने बेगम कुलसूम सैफुल्लाह खान नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। पीटीएफ टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में मुज़म्मिल मुर्तज़ा ने अकील खान को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मुज़म्मिल मुर्तज़ा ने पहला सेट 7-6 से जीतकर बरतरी हासिल की। दूसरे सेट में भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 6-2 से सेट जीतकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया। हाउसिंग एंड वर्क्स के वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को भी सराहा। आखिर में खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के पैट्रन सलीम सैफुल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। बॉयज अंडर 18 का टाइटल हमजा रुमान ने अबू बकर तलहा को हराकर हासिल किया। अंडर 14 के फाइनल में मोहम्मद जुनैद ने मोहम्मद मास को मात दी। अंडर 12 में मोहम्मद अयान ने दानियाल के खिलाफ कामयाबी समेटी। 35वीं नेशनल गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पंजाब के 126 मेडलिस्ट खिलाड़ियों के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने कहा कि 126 मेडलिस्ट में 3,03,50,000 रुपए के इनामात तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब ने नेशनल गेम्स में पहली बार 16 गोल्ड मेडल्स जीते। वजीर आला पंजाब एंडोवमेंट फंड के जरिए नौजवानों की हौसला अफजाई जारी है। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि पंजाब पहला सूबा है जो खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए के इनामात से नवाज रहा है। खिलाड़ियों और कोचेस के लिए हेल्थ कार्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। और अब एशेज की बात कर लेते हैं तो सिडनी में 5वें एशेज टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 119 रन की बरतरी हासिल हो गई है और इसकी 2 विकेटें अभी बाकी हैं। टेस्ट के चौथे रोज खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 302 रन स्कोर कर लिए। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का आगाज पहली इनिंग्स में 518 रन 7 खिलाड़ी आउट से किया तो बाकी की 3 विकेटें 49 रन के इजाफे के साथ गिर गईं। कैमरन ग्रीन 37 रन बनाकर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ ने शानदार 138 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से ब्राइडन कार्स और जॉश टंग ने 3-3 विकेटें हासिल की। बेन स्टोक्स ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 183 रन के खसारे के साथ बैटिंग शुरू की। जैक क्रॉली 1 और बेन डकेट 42 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। जो रूट 6, हैरी ब्रूक 42 और विल जॉक्स 0 पर आउट हुए। जेकब बैथल ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 15 चौकों की मदद से 142 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बो वेबस्टर ने 3 और स्कॉट बोलन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 384 रन स्कोर किए थे। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, बिग बैश क्रिकेट लीग में मेलबर्न रेनिगेड्स ने पर्थ स्कॉचर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में खेले गए मैच में मेजबान टीम पर्थ स्कॉचर्स 19.2 ओवर्स में 127 रन पर आउट हो गई। एरन हार्डी 44 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। मिचेल मार्श ने 27 और एस्टन टर्नर ने 12 रन स्कोर किए। मेलबर्न रेनिगेड्स की जानिब से गुरिंदर सांधू ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। हसन खान ने 2 विकेटें हासिल की। मेलबर्न रेनिगेड्स ने 128 रन का हदफ आखिरी गेंद पर 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
ओपनर्स जॉश ब्राउन ने 22 और टिम साइफर्ट ने 11 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 21 और जेक फ्रेजर ने 8 रन बनाए। ऑलिवर पीक 42 रन पर नॉट आउट रहे। बिग बैश क्रिकेट लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। तुर्बत में केज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है, जो क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, तनसाजी और मुख्तसर साइकिल रेस के दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हो रही है। शायकीन में खुशी, वलवला और खेलों का बेहपनाह जज्बा देखने को मिल रहा है। मेले के दौरान खिलाड़ियों और नौजवानों ने बलोची रिवायती रक्स पेश किया, जबकि इलाकाई गीतों की गूंज ने माहौल को मजीद पुरजोश बनाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कैशलेस इकॉनमी के विजन के तहत कसूर में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिम्स जारी करके उनके वॉलेट अकाउंट्स खोलने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मुअज़्ज़मुद्दीन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़वातीन और मुआशरे के कमज़ोर तबकात की मुआशी खुद कफ़ालत का बड़ा प्रोग्राम है, जिसको आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। इस प्रोग्राम को शफाफ और महफूज बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए सूबे के दीगर अजला की तरह कसूर में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फैज़याब होने वाली मुस्तहिक ख़वातीन को मुफ्त सिम्स जारी करके उनके वॉलेट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। ज़िला कसूर में अब तक 1,95,612 में से 80,000 से ज़ायद ख़वातीन को रजिस्टर करके मुफ्त सिम जारी की जा चुकी हैं, जिसके तहत हकदारों को उनका हक उनके ज़ाती मोबाइल सिम पर घर बैठे मिल सकेगा। कसूर में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतहाई बाइज़्ज़त तरीके से ख़वातीन को सिम जारी की जाए। जो ख़वातीन सिम ले रही हैं, इनका वॉलेट अकाउंट बन जाना है, तो इन्होंने अपनी मर्जी से अपने पैसे इस्तेमाल करने हैं। प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन ने इस इक़दाम को तारीख़ी करार देते हुए मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस फैसले से रकूम के हसूल में हाइल मुश्किलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। जी, हुकूमत ने हमारे लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम लिया है। हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, हमारा वक्त ज़ाया होने से बच गया। हमें घर बैठे इस सिम के ज़रिए, जो कि हमारे लिए एक प्रोटेक्शन वॉलेट है, हमें घर बैठे इस निज़ाम के तहत पैसे फराहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का बड़ा शुक्रिया, सानू आसानी नाल पैसे मिल जाते, घर लेने से लगने पहले घर बैठे पैसे टक्कर जान करन दे। मैं ना बहुत खुश हूँ, मेरा अकाउंट बन गया, मेरे अकाउंट में पैसे आए करेंगे। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह सबसे मुश्किलें आसान करे। डिजिटल वॉलेट मुफ्त सिम के हसूल के लिए ख़वातीन को अपने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल के हमरा अपने करीबी BISP दफ्तर या कैंप साइट पर जाकर बायोमेट्रिक और रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होगा। सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के जदीद डिजिटल निज़ाम का मकसद ख़वातीन की खुद मुख्तारी और रकूम की तरसील के निज़ाम को मज़ीद आसान, महफूज और शफाफ बनाना है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कसूर। बच्चों के पेट में कीड़े खतरनाक मसला है। कराची में बच्चों के पेट के कीड़ों के खात्मे की खुसूसी मुहिम जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं नौरीन आसिफ की। महकमा सेहत सिंध, पेमरा और IRD के इश्तराक से शहर भर में 10 जनवरी तक जारी रहने वाली इस मुहिम के दौरान 60 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव की मुफ्त दवा दी जाएगी। 5 से 14 साल के बच्चियों के साथ 15 से 18 साल की लड़कियों को भी डिवॉर्मिंग की खुराक फराहम की जा रही है। ये मुहिम सरकारी और निजी स्कूलों और घर घर चलाई जा रही है, जिसमें 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मुहिम का मकसद बच्चों को आंतों के कीड़ों से महफूज करना और उनकी सेहत, नशोनुमा और सीखने की सलाहियत बेहतर बनाना है। माहिरीन सेहत का कहना है कि डिवॉर्मिंग दवा महफूज और मौसर है। अगर बच्चों की एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, या बच्चों का वजन कम होता जा रहा है, या फटीग है, कोई अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स हैं, बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है, तो आपकी बच्चे के अंदर बेसिकली पेट के कीड़ों के निशानात मौजूद हैं। ओवरऑल एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस है इस मेडिसिन का। यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, क्योंकि ओरिएंटेशन ज़्यादा है, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है, लोग भी ज़्यादा मतलब रिपोर्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, सब कुछ है, तो इस वजह से जो है ये केसेस हमें ज़्यादा मिले हैं और कराची में ही हो रहा है। वालिदैन से अपील की गई है कि वो इस मुहिम में भरपूर ताउन करें। ये मुहिम न सिर्फ बच्चों को बीमारियों से महफूज बनाने में मदद देगी, बल्कि एक सेहतमंद और मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद भी फराहम करेगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت. پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ایک مختصر بریک کا. بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز. ہمارے ساتھ رہیے گا.